کورونا کی دوسری لہر، مزید 36 افراد کا انتقال، اب تک 7,561 اموات، 3,68,665 شہری متاثر، 24 گھنٹے کے دوران 2,738 نئے مریض۔ ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 33,562 تک پہنچ گئی۔ اسلام آباد کے 7 تعلیمی اداروں میں کورونا کیسز رپورٹ۔ ماڈل کالج فار گرلز ہمک، ماڈل اسکول فار گرلز E9، ماڈل اسکول فار بوائز F83 اور دیگر شامل۔ تحریک لبیک کے سربراہ خادم حسین رضوی کا انتقال، ممتاز عالم دین کو بخار اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا تھا۔ نماز جنازہ کل مینار پاکستان گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی۔ کارکن غم سے نڈھال، صدر مملکت، وزیر اعظم اور آرمی چیف کی جانب سے اظہار تعزیت۔ افغانستان کا کوئی فوجی حل نہیں، تشدد کے خاتمے کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے۔ پاکستان نے مفاہمتی عمل میں مثبت کردار ادا کیا۔ افغانستان میں وزیر اعظم عمران خان کی افغان صدر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس، 1 روزہ دورے کے بعد وطن واپسی۔ We've come to an understanding that a shared vision regarding cooperation is not only essential for relations between Pakistan and Afghanistan. علاقائی ترقی کے لیے پاکستان اور افغانستان میں تعاون ناگزیر، روابط کا فروغ اور معاشی سرگرمیاں دونوں ملکوں کے مفاد میں ہیں۔ افغان صدر اشرف غنی۔ عمران خان کی دورہ پاکستان کی دعوت قبول، کپتان سے افغان کرکٹ ٹیم کی بھی ملاقات۔ وزیر خارجہ کی افغان ہم منصب سے ملاقات، 2 طرفہ تعلقات، مفاہمتی عمل اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ خطے میں استحکام افغانستان میں امن سے مشروط ہے، شاہ محمود قریشی۔ دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر بھی مذاکرات۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی ناظم الامور کی ملاقات، افغان امن عمل اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ امریکی ناظم الامور کی جانب سے علاقائی استحکام کے لیے پاکستانی کوششوں کی تعریف۔ ہم ہر چیز پر بات کرنے کو تیار ہیں۔ حکومتوں کو کام ہوتا ہے دروازے کھلے رکھنا، ہمارے دروازے کھلیں۔ آپ آئیے، جس چیز پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے عوام کے جس مسئلے پہ بات کرنا چاہتے ہیں، ہم سے بات کریں۔ ہم NRO نہیں دیں گے۔ اپوزیشن کو کسی صورت NRO نہیں ملے گا۔ مذاکرات کے لیے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں۔ چاہتے ہیں حسب اختلاف جلسے کر کے اپنا وقت برباد کرتی رہے۔ اسد عمر اور دیگر وزراء کی پریس کانفرنس۔ ملک میں صرف اپوزیشن کے احتساب کا تاثر بے بنیاد۔ شوگر اسکینڈل میں لوگوں کا تعلق تمام جماعتوں سے ہے، یہ کہنا غلط ہے۔ نواز شریف کو انہوں نے جانے دیا، برطانیہ سے کہہ دیا کہ وہ مفرور اور اشتہاری ہیں۔ مشیر داخلہ شہزاد اکبر۔ ہر طرح کا فیصلہ کیا ہے، مشکل سے مشکل۔ اسٹیٹ بینک سے ہم کوئی قرض نہیں لے رہے ہیں، ٹیکسز پہلے سے بہتر انداز میں کر رہے ہیں، اور دوسری جانب ہم نے حکومتی اخراجات کو کم کیا۔ IMF کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ بہت اچھا ہے۔ ہمارا ان سے روزانہ جو ہے کوآرڈینیشن کا سیشن ہوتا ہے۔ حکومتی اخراجات کو زبردست طریقے سے کنٹرول کیا۔ حکومت اب اسٹیٹ بینک سے قرضہ نہیں لے رہی۔ IMF سے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ انرجی سیکٹر میں بہتری ان کے مفاد میں ہے۔ حفیظ شیخ کی دنیا کا عمران خان کے ساتھ میں گفتگو۔ کراچی میں سرکولر ریلوے آخرکار جزوی بحال، پہلی ٹرین مقررہ وقت پر چل کر منزل تک پہنچی۔ مسافر آج KCR پر مفت سفر کر رہے ہیں۔ راولپنڈی میں ہفتہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے فن خطاطی کی نمائش، رنگوں کا حسین امتزاج، قرآنی آیات کی دلکشی سب سے نمایاں۔ 100 سے زائد فن پارے شہریوں کی توجہ کا مرکز۔
1 साल के अंदर आप इस काबिल हो जाते हैं कि अच्छा काम करना शुरू कर देते हैं। और मैं तो यही गवर्नमेंट से भी मेरी यही इस्तदा है कि स्कूलों में इसको राइज करें, बच्चों के हैंड राइटिंग अच्छी हो। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। जो मुझे आता है उससे बढ़कर यहाँ पर काम हुआ है। खत्तातों ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इसको अपने ज़ोर कलम अपनाया है। ये जो हफ़्ता मनाया जा रहा है इश्क़ रसूल का, इससे बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा मैसेज जा रहा है जो नौजवान नस्ल है। आगाज में खबर यह है कि कोरोना की दूसरी लहर खौफनाक होने लगी है। वबा से 24 घंटे के दौरान मजीद 36 अफराद दम तोड़ गए हैं। 2738 केसेस भी सामने आ गए। मुल्क भर में अब एक्टिव केसेस की तादाद 33,562 तक पहुंच गई। एहतियाती तदाबीर में गफलत से अमवात में इजाफा। कोरोना मजीद 36 अफराद की जान ले गया। जान बहक अफराद की तादाद 7,561 हो गई। मजीद 2,738 अफराद में वायरस की तस्दीक से मरीजों की तादाद 3,68,565 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 33,562 तक पहुँच गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 1,59,752, खैबर पख्तूनख्वा 43,359, पंजाब में 1,12,893, इस्लामाबाद 25,719, बलूचिस्तान में 16,642, आज़ाद कश्मीर में 5,806 केसेस हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मरीजों की तादाद 4,494 हो गई है। 3,27,542 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस रिपोर्ट होने पर मजीद 7 तालीमी इदारे सील कर दिए गए। इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने 2 से ज़ायद कोरोना केसेस रिपोर्ट होने पर मजीद 7 तालीमी इदारे सील कर दिए हैं। सील किए गए तालीमी इदारों में 3 निजी और 4 सरकारी स्कूल शामिल हैं। DHO की जानिब से फौरी तौर पर स्कूल बंद करने की हिदायत जारी की गई हैं। इन स्कूलों को इब्तदाई मरहले में 14 रोज के लिए सील किया गया है। उधर कराची में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर इंतजामिया ने मुतअद्दिद दुकानों और सुपर मार्केट्स को सील कर दिया है, जबकि कई शादी हॉल्स को वार्निंग और जुर्माने भी किए गए हैं। कराची में कोरोना SOPs पर अमल ना करने पर कार्रवाइयां जारी हैं। इंतजामिया ने 13 सुपर मार्केट्स, दुकानें, मेडिकल स्टोर सील कर दिए। 7 शादी हॉल्स को वार्निंग और 4 लाख रुपए जुर्माना किया गया। 7 रेस्टोरेंट्स को 4.5 लाख से जायद जुर्माना, 39 को वार्निंग, जबकि 8 सील कर दिए गए। गुजरांवाला के गवर्नमेंट फकीर मोहम्मद कॉलेज में रैंडम सैंपलिंग के दौरान स्टाफ के 6 अफराद का कोरोना टेस्ट मस्बत आने पर कॉलेज को सील कर दिया गया है, जबकि तुलबा की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे फाहद बशीर। आज देखिए गुजरांवाला के तालीमी अदारों में रैंडम सैम्पलिंग के तहत कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। अगर किसी तालीमी अदारे में 2 या इससे ज़ायद कोरोना जो टेस्ट वो पॉजिटिव आते हैं तो उस तालीमी अदारे को बंद कर दिया जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट फ़कीर मोहम्मद फ़कीर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के बाहर है, जहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ कॉलेज स्टाफ और जो तलबा हैं उनके कोरोना टेस्ट किए गए थे। तो जो स्टाफ की टेस्ट रिपोर्ट आई उसमें से 6 जो केसेस हैं वो पॉजिटिव निकले हैं, जिनमें 2 प्रोफेसर्स, लेक्चरार्स, लैब अटेंडेंट और दीगर अफराद शामिल हैं, जबकि बच्चों की जो टेस्ट रिपोर्ट है वो अभी आना बाकी है। तो 6 जो पॉजिटिव केस आने के बाद इस कॉलेज को जो है वो ताहुक्म सानी बंद कर दिया गया है। इसके अलावा गुजरांवाला का गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज है, वहाँ पर 8 केसेस सामने आए तो उस कॉलेज को बंद कर दिया गया है। इसी तरह मेडिकल कॉलेज में अब तक 16 से 17 जो तलबा व तालबात हैं उनके जो कोरोना टेस्ट है वो पॉजिटिव निकले हैं। ज़िली इंतज़ामिया का ये कहना है कि रैंडम सैम्पलिंग ना सिर्फ तलीमी अदारों बल्कि स्मार्ट लॉकडाउन किए गए इलाकों में भी जारी है। इसके अलावा मार्केटों और बाज़ारों में भी ये रैंडम सैम्पलिंग की जाएगी और कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। जी। बलूचिस्तान से दीगर सूबों को जाने वाली ट्रेनें कोरोना वायरस के पेश नज़र ताहाल बंद हैं, जबकि इस दौरान चलने वाली एक ट्रेन जाफर एक्सप्रेस मुसाफिरों की ज़रूरत पूरी करने के लिए नाकाफ़ी है। मुसाफिरों को ट्रेनें बंद होने से किस किस्म की मुश्किलात का सामना है, बता रहे हैं अक्सा मीर। जी बिल्कुल, वादी कोयटा में मौसम सर्द होने के साथ ही मुसाफिरों की बड़ी तादाद यहाँ से अपने शहरों की तरफ जो है ना वो जाना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद ही शहरियों को मुश्किलात का सामना है, क्योंकि कोयटा से जो जाने वाली ट्रेनें थी वो गुज़िश्ता 7-8 माह से यहाँ पर मुकम्मल तौर पर बंद है। यहाँ पर बोलान मेल थी और अकबर एक्सप्रेस जो चल रही थी वो यहाँ पर कवट के बाद ही यहाँ पर मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। मुसाफिरों को मुश्किलात है, बल्कि जो कुल्ली अफराद हैं उन्हें भी बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनकी जो रोज़ी रोटी है वो चलती ही इसी वजह से है कि यहाँ पर
ट्रेनें चलती हैं, मुसाफिर आते हैं तो वो मुसाफिरों का सामान लेकर और अपना गुजर बसर करते हैं, लेकिन ट्रेनें बंद होने की वजह से उन्हें भी जो है ना माली मुश्किलात का सामना है। हुकूमत को चाहिए कि जहाँ पर ये ट्रेन चल रही है वहाँ पर बोलान मेल और अकबर एक्सप्रेस जो बंद की गई हैं उसे भी खोल दे ताकि शहरियों की मुश्किलात हल हो और यहाँ पर जो आने वाले मुसाफिर हैं अपने शहरों तक जाने के लिए जो है ना उन्हें मुश्किलात का सामना ना हो और वो यहाँ से टिकटें करवा कर और सीधे ही अपने शहरों की तरफ जाएं, क्योंकि बहुत से ऐसे मुसाफिर हैं जिन्होंने कराची जाना है लेकिन कराची की ट्रेन ना चलने की वजह से वो पहले यहाँ से लाहौर जाएंगे और फिर लाहौर के बाद वो वहाँ से कराची जाएंगे। जी। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर की वजह कोरोना वायरस को करार दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर के बायस इंतखाबात का अगला साल 2021 में भी इनकाद मुमकिन होना नजर नहीं आ रहा। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर जमील इस वक्त मुआविन खुसूसी कामरान बंगिश के साथ मौजूद हैं, जिनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। आमिर, बताइएगा सूबाई हुकूमत का क्या कहना है? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात 28 अगस्त 2018 को ख़त्म हो चुके थे, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से 2019 में बल्दियाती निज़ाम में तब्दीली की गई थी, जिसमें जो ज़िले नाज़िम का ओहदा था वो ख़त्म करके मेयर का ओहदा जो है मंजूर किया गया था। ताहम 14 माह गुजर जाने के बावजूद ताहाल बल्दियाती निज़ाम जो है वो दोबारा नहीं किया जा सका और इसी तरीके से इंतखाबात भी नहीं कराए जा सके। कमरान बंगश जो कि मुशीर इत्तलात है इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारी जब मैं महकमा बल्दियात का पोर्टफोलियो देख रहा था तो हमारा टारगेट ये था नवंबर दिसंबर से 2019 से अगस्त 2020 का हमारा टारगेट था कि हम इलेक्शंस कंडक्ट करेंगे और हमने अपनी टाइम लाइन्स और अपनी एक्टिविटीज़ जो इलेक्शन कमीशन के साथ कोऑर्डिनेशन में दी। जो कोविड आया बीच में मार्च में, उसकी वजह से सब कुछ जो सारा सिस्टम था वो हमारा हाल्ट पे चला गया। तो इन हालात में इतनी गैर यकीनी सूरत हाल है कि हम इसमें ये रिस्क नहीं ले सकते। तो हमारा ये मौक़िफ़ है। अदलिया का जो फ़ैसला है वो हमारे पास आ चुका है, हम उसको मुख्तलिफ़ एंगल से देख रहे हैं और इंशाल्लाह हम कानूनी तौर पर भी और उनको भी ये कम्युनिकेट करेंगे। इलेक्शन कमीशन के साथ भी हम राब्ते में। खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से, हुकूमत की जानिब से तैयारियां मुकम्मल थी, लेकिन अब इन हालात में गैर यकीनी सूरत हाल में इलेक्शंस की तरफ जाना बहुत ख़तरनाक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुशीर इत्तलात कमरान बंगश हमारे साथ हैं और उनके कहने के मुताबिक तैयारियाँ मुकम्मल थी लेकिन कोरोना के बायस इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हुए हैं। जी। शहबाज गिल कहते हैं रंजीत सिंह की हर चीज़ पर शरीफ फैमिली और हवारियों ने कब्जा कर रखा है। अरबों का दूध देने वालों की भैंसें पकड़ी गई हैं जिस पर कमर में दर्द हो रहा है। अब निचली क़यादत की बारी है। अदालती फैसले के बाद हर जमात कोरोना SOPs पर अमल दरामद की पाबंद है। गुजरांवाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुर्रम दस्तगीर पर भी शदीद तनकीद की। खुर्रम दस्तगीर साहब, जिसको नवाज शरीफ साहब ने बादशाह बनाया हुआ है गुजरांवाला का बेताज, उसी ने कब्जा किया हुआ है वो सरकारी जमीन पे। रंजीत सिंह के जो वारिस है ना, अपने आप को समझते, वो शरीफ खानदान समझता है। रंजीत सिंह की जहां जहां बिल्डिंग है वो उसमें किसी पे इन्होंने खुद कब्जा कर लिया है, किसी पे इन्होंने इनके हवारियों ने किया है। वहां से माल पानी बनाते हैं। एक एक बंदा इनका एक एक हवारी अगले दिनों में आपके सामने लेके आएंगे। ये कहते हैं ना कि हम सरकारी अफसरों की लिस्टें बना रहे हैं, हम इनको देख लेंगे। आप तो देख लेंगे, हम आपको देख रहे हैं। ये जो आपकी सेकंड थर्ड टियर है, अब इनकी बारी है। ऊपर वालों की भैंसों ने जो अरबों रुपए का दूध दिया था वो मज्जां ते गईयां ने फड़ियां। हुण उन्हां दी एक कमर च दर्द हो रही। अब्दुल हफीज शेख कहते हैं कि कोरोना सूरत हाल में मुश्किल फैसले करना पड़े, हुकूमती अखराजात को कम किया, माजी की तरह अब स्टेट बैंक से कर्जा नहीं ले रहे। IMF से रोजाना की बुनियाद पर कोऑर्डिनेशन सेशन होता है। मुशीर खजाना दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। हर तरह का फैसला किया है, मुश्किल से मुश्किल। स्टेट बैंक से हम कोई कर्ज नहीं ले रहे हैं। मिलिट्री के एक्सपेंसेस को भी मुंजमद किया। टैक्सेस पहले से बेहतर अंदाज में कर रहे हैं और दूसरी जानिब हमने हुकूमती अखराजात को कम किया। IMF के साथ हमारा जो ताल्लुक़ है वो बहुत अच्छा है। हमारा उनसे रोज़ाना जो है कोऑर्डिनेशन का सेशन होता है। वो चाह रहे हैं कि हम दो चीज़ों में मज़ीद पेशरफ्त करें। एक तो यह है कि जो बिजली के सेक्टर के खसारे हैं और जो बिजली का जो सेक्टर है एनर्जी का, इसमें बेहतरी लाई जाए ताकि ये जो एक बोझ हुकूमत के बजट पे पड़ता है इसको कम किया जाए। ये हमारे अपने ज़ात मुल्की इंटरेस्ट में भी है।
वज़ीर आला पंजाब ने बाब लाहौर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। ठोकर न्याज बेग पर खैर मकदमी आराइशी गेट को खोल दिया गया है। लाहौर बागों और फूलों का शहर है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि बाब लाहौर शहर की खूबसूरती में इजाफा करेगा। ठोकर न्याज बेग पर खैर मकदमी आराइशी गेट को खोल दिया गया है और इस बाब लाहौर मंसूबे का इफ्तिताह आज वज़ीर आला पंजाब ने किया है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं लाहौर से अपने नुमाइंदे लियाकत अंसारी से। लियाकत, कहिएगा। पंजाब सरदार समान रोजगार की खुसूसी हिदायत पर लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते ठोकर न्याज बेग पर जो खैर मकदमी आराइशी गेट था उसकी तामीर मुकम्मल कर ली गई है और वज़ीर आला पंजाब ने जो है इस बाब लाहौर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। तख्ती की नकाब करके उन्होंने मंसूबे का इफ्तिताह किया। इस मौका पर वज़ीर आला का कहना था कि बाब लाहौर की तामीर से दूसरे शहरों से लाहौर आने वाले शहरियों पर खुशगवार तासुर कायम होगा और लाहौर बागों और फूलों का शहर है। और मंसूबे के तहत ठोकर न्याज बेग जंक्शन की जो है वो रीमॉडलिंग भी की गई है और नहर के साथ ग्रीन एरिया कायम किए गए, स्ट्रीट लाइट, अफासी जंगले और आराइशी रोशनियां भी लगाई गई हैं। बाब लाहौर जो है वो 130 फुट चौड़ा और 60 फुट बुलंद और इसके दोनों तरफ स्टील वर्क से दरूज शीट भी लिखा गया है। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि लाहौर को नई शनाख्त की गई है और साबिक हुक्मरानों ने खूबसूरत शहर को जो है वो तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन हम जो है वो खूबसूरत बना रहे हैं और लाहौर के दीगर दाखिली और खारजी रास्तों को भी खूबसूरत बनाया जाएगा। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफ किया गया कि जो लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे और लाहौर मुल्तान मोटरवे से ये आने वाली ट्रैफिक इस गेट से गुजरकर होकर लाहौर में दाखिल हो रही है, लेकिन इस मंसूबे की तामीर के दौरान 1 मिनट के लिए भी ट्रैफिक को नहीं रोका